Hello students, today we will start our new lesson of Beehive book, that is the packing. Packing, in this chapter there are three main characters: narrator, George, Harris, and with them their dog Montmorency is also included in this chapter as a character. It creates nuisance in this chapter. Before discussing the lesson, I am telling you short summary of this chapter. Packing is a story about three friends who are getting ready to go for a journey. It follows the packing session of three friends: Jerome is the writer of this chapter, narrator or writer, Harris, and George. This story is an extract. Extract means part taken from Three Man in a Boat. ये जो चैप्टर है आपका शॉर्ट स्टोरी है किसकी? थ्री मैन इन अ बोट by Jerome K. Jerome. In here, Jerome is the narrator himself and writes about the experience he was while his friends decide to start packing. Further, it takes us on a hilarious ride about three adults who struggle to do a basic thing as packing. Packing summary will take you through the nuisances they experience in addition to their dog Montmorency's contribution. Similarly, it also shows how his other two friends are not that great when it comes to packing. Now I am starting the lesson. I said I had packed. I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about more than any other person living. Means here the writers or narrator says that he feels pride that he knows very well about packing, and he has the caliber to pack something in a better way. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to him. Means जो नरेटर है वो दो जो करेक्टर हैं जॉर्ज और हैरिस, उनको बोलता है कि तुम बेटर रहेगा कि तुम इस पूरी जॉब को मेरे ऊपर छोड़ दो. They fell into suggestion with a readiness. They were very ready to leave the whole matter on the narrator. वो खुद खुश हैं इस बात के लिए कि नरेटर जो है खुद काम करना चाहता है, खुद फील करना चाहता है. बट in reality narrator did not want to pack the things. He wanted to be the boss of the whole matter. मीन्स सुपरवाइज करना चाहता है. वो चाहता है कि जो काम है वो तो जॉर्ज और हैरिस करे, बट किसके कहने पर करे? नरेटर के कहने पर. जैसे जैसे नरेटर कहे वैसे वैसे वो करें. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर. अब जॉर्ज ने क्या किया? अपने आप को इजी चेयर पर फैल कर बैठ गया. एंड हैरिस कुक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. और जो हैरिस है वो टेबल पर अपनी लेग्स को रखकर आराम से बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. मीन्स कि अब नरेटर ये सोच रहा है कि मेरा तो ये कहने का मतलब था ही नहीं कि ये दोनों तो आराम से बैठ जाएं और मैं काम करूं. उसका क्या मतलब था? कि वो सुपरविजन करे, उसकी सुपरविजन में ये दोनों काम करें. What I had meant, of course, was that I should boss the job. Narrator wanted to boss the job, and the Harris and George should potter about under my direction. Potter means unimportant things. छोटे छोटे काम करें मेरी direction में. I pushing them aside every now and then with, oh you, here, let me do it. There you are simple enough, really teaching them. As you might say, they are taking it in the way. मीन्स क्या था? जो नरेटर है वो काम नहीं करना चाहता, बट ये चाहता है कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे जॉर्ज और हैरिस काम करें. और बट उन्होंने क्या किया? वो तो दोनों आराम से बैठ गए. एंड और ये चीज़ उसको इरिटेट भी करती है कि नरेटर जो है वो काम कर रहा है और उसके आसपास के लोग आराम से बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं. तो ये चीज़ उसको बहुत इरिटेट करती है. देयर इज नथिंग डज इरिटेट me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working.
at the time when the narrator was working and the other persons were doing nothing but they were only watching the whole matter. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. I lived with a man, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि एंड कि वो ऐसे पर्सन के साथ रहता है कि जो उसको बैठकर खाली बैठकर पागल कर देते हैं कि अगर नरेटर को काम करना पड़ जाए और जो उसके सामने आसपास के लोग हैं वो आराम से बैठे रहें, ये चीज़ उसको बहुत ही बुरी लगती है, इरिटेट होती है. ही सेड इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट. मैसिंग होता है क्रिएटिंग क्योस, कन्फ्यूजन क्रिएट करना, प्रॉब्लम क्रिएट करना किसी के काम में. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट, आई कांट सिट. अब वो ये कहना चाह रहा है कि मैं उन लोगों की तरह से नहीं हूँ कि जो बैठकर मैस क्रिएट करते हैं. मैं आई कैन नॉट सिट स्टिल, मैं आराम से नहीं बैठ सकता. मैं ये नहीं देख सकता कि मैं तो आराम से बैठा हूँ और सामने वाले जो पर्सन्स हैं वो स्लेव की तरह काम कर रहे हैं. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपर इंटेंट मतलब सुपरवाइज एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स. बट उसका क्या काम है, वो ये चाहता है कि मैं पॉकेट्स में हैंड डालकर काम को सुपरवाइज करूँ, जो काम कर रहे हैं उनको डायरेक्शंस दूँ, उनको गाइडेंस दूँ कि इस प्रकार से वो काम करें. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर, ये उसका एनर्जेटिक नेचर है. आई कांट हेल्प इट, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता. हाउएवर I didn't say anything but started the packing. But the narrator didn't say anything to George and Harris while they were sitting on the chair and narrator was working. But narrator started to pack the things. It seems a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last. अब उन्होंने नरेटर ने जो है बैग पैक कर लिया, अपना फिनिश कर लिया ये काम. आई सेट ऑन इट, उसके ऊपर बैठ गए एंड स्ट्रैप्ड इट. और इसकी स्ट्रैप्ड मीन्स टाइड विद स्ट्रैप्स, फीतों को जो बैग के उसके वो उनको बंद कर दिया. आंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. हैरिस आस्क्ड फ्रॉम द नरेटर whether he had packed the shoes in the bag or not. After packing, while creating nuisance, Harris asked from the narrator whether he had packed the boots in or not. And I looked around, and the narrator looked around and found he had forgotten to pack the boots. वो इधर उधर देखता है और क्या करता है कि जो उसने शूज़ को पैक नहीं किया. That's just like हैरिस, कि ये हैरिस की एक बात है कि जब वो पैक कर रहा है, जब वो कुछ नहीं बोला, जब पूरा बैग पैक हो गया तब वो पूछ रहा है. He wouldn't have said a word until I had got the bag shut and strapped, of course, and George laughed. One of those irritating. एक तो हैरिस ने इरिटेट क्रिएट किया, न्यूसेंस क्रिएट की कि आफ्टर पैकिंग द बैग ही वॉज आस्किंग whether he had packed the shoes or not, and after that George was started to laugh. जॉर्ज हंस रहा है, ये और एक इरिटेट कर रहा है नरेटर को ये थिंग. सेंसलेस लाफ ऑफ हिज, दे डू मेक मी सो वाइल्ड, कि ये तो मुझे पागल कर देंगे, वाइल्ड कर देंगे. आई ओपन द बैग. आफ्टर दैट द नरेटर ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन, एंड देन जस्ट एज वॉज गोइंग टू क्लोज इट, व्हेन आफ्टर पैकिंग शूज the narrator was going to close it, a horrible idea came to me. A horrible idea came to the narrator whether he had packed his toothbrush or not. I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. अब उसको याद आया कि क्या उसने अपने टूथब्रश को बैग में पैक किया या नहीं किया. Toothbrush is a thing that haunts me. Haunts means क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द नरेटर, कि कभी भी कहीं भी जाना है, जो टूथब्रश है वो नरेटर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. वन आई एम ट्रेवलिंग मेक्स माई लाइफ अ माइजरी, कि जब वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है कि वो कई बार टूथब्रश ले जाना भूल जाता है तो इसके लिए उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ब्रश साथ में नहीं होता. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक इट, और एक बार तो उसको सपना आया कि उसने टूथब्रश को पैक नहीं किया. एंड वेक अप इन अ कोल्ड परस्पिरेशन, और वो मतलब पसीने छूटे हुए उठा डर कर. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, और उसको ढूंढने लग गया. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट.
ठीक है। और मॉर्निंग में क्या किया, उसको पहले ही पैक कर लिया यूज़ करने से पहले, ठीक है। आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज इट एंड हैव टू अनपैक, और फिर उसको यूज़ करने के लिए फिर से बैग खोलना पड़ा। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट एंड आई हैव टू rush upstairs for it at last the moment and carry it to the railway station कि लास्ट मोमेंट पर सीढ़ियां चढ़कर ब्रश लेने कर गया और फिर दौड़कर रेलवे स्टेशन पर गया एंड रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंकी, और फिर उसको बैग खोलने की बजाय अपनी पॉकेट में रखने वाले हैंकी के बीच में ही रैप कर दी। ये अपने पिछले इंसिडेंट की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट फाइंड इट। अब उन्होंने सारी चीज़ बाहर निकाल ली लेकिन उनको कहीं भी नहीं मिला। आई रमैग्ड द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट। रमैग्ड होता है सर्ज इन अ हरीड और केयरलेस वे, जब हम कोई चीज़ ढूंढते हैं बैग में जल्दी से, जो फिर उसको सिस्टमैटिक वे में नहीं निकालते और सिस्टमैटिक वे में वापस नहीं रखते। एंड देन दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ड वॉज क्रिएटेड, और फिर जब हम बैग में से एकदम से सारा सामान निकालेंगे तो कैसे फैल जाएगा सारा, कैसे कि जैसे हमारे सामने पूरा वर्ल्ड फैल गया। एंड देन वन क्योज रेड, क्योज होता है डिसऑर्डर, अव्यवस्था, रेंड मतलब रूल्ड, तब उसके कारण पूरी अव्यवस्था हो गई। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। आई फाउंड कि मुझे जॉर्ज और हैरिस के ब्रश तो 18 टाइम्स दिखे बट मुझे अपना नहीं दिखा। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर से उसने वापस रखी चीज़ें एक एक करके एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट, देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट। फिर उसको देखता है कि उसको अपना ब्रश कहाँ मिलता है, बूट के अंदर। आई रीपैक्ड वंस मोर, फिर से उसने बैग को रीपैक किया। वन आई हैड फिनिश्ड जॉर्ज आस्ट, अब उसने पूरी पैकिंग फिनिश कर ली फिर जॉर्ज पूछता है कि इफ़ द सोप्स वॉज इन, क्या सोप जो है साबुन इसके अंदर है। आई सेड आई डिडंट केयर अ हैंग वेदर द सोप वॉज इन और वेदर इज इट वॉजंट, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, इट डिडंट मैटर टू मी वेदर आई हैड पैक्ड द सोप इन और नॉट। एंड आई स्लैम्ड द बैग, स्लैम्ड होता है बैंग्ड द बैग शट, और उसको बैग को बंद कर दिया और स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट। फिर उसको याद आया कि उसने अपने स्पेक्स को इसके अंदर रख दिया है। अब फिर से उसको रीओपन करना है। इट गोट शट अप फाइनली एट 10 PM, 10:05 PM। फाइनली उनका बैग कब पैक हुआ, रात के 10 बजे। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू, अब क्या रह गया, अब ये सारी चीज़ें तो नरेटर ने पैक कर दी, इसके बाद पैकिंग के लिए खाने पीने का सामान पैक करना था। लार्ज बास्केट फॉर कैरिंग फूड मीन्स वो अपनी जर्नी पर एक लार्ज बास्केट लेकर जा रहे हैं जिसमें फूड मटेरियल रखने के लिए। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर्स टाइम, कि अब हमें 12 घंटे से भी पहले से अपनी जर्नी के लिए जाना है। एंड थॉट दैट he and George had better do the rest and I agreed and I sat down। अब उनको लगा कि जॉर्ज और हैरिस का जो है वो रेस्ट हो गया है, अब वो पैक करेंगे इसको हैम्पर्स को, और जो राइटर है वो बैठ गया नरेटर। एंड दे हैड अ गो, दे बिगिन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, मतलब ईजी वे में उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू की जॉर्ज और हैरिस ने, evidently intending to show me how to do it, और ये इंटेंट मतलब इरादा है उनका कि वो दिखाएं कि कैसे पैक करते हैं। आई मेड नो कमेंट वेदर जॉर्ज एंड हैरिस started their packing of hampers. The narrator made no comment upon them. He only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. Means जो नरेटर है वो ये कहना चाहता है कि वो दोनों जो है ना वर्स्ट पैकर हैं वर्ल्ड के अंदर। उसको ये नहीं पता कि वो खुद भी वर्स्ट पैकर है, उसने भी कितनी बार बैग को रीओपन किया है बार बार। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स कप्स, पाइल्स मतलब ढेर रखा है वहाँ प्लेट्स का, कप्स का, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पीस, स्टोव्स, पीस होता है बेटा ये आप स्नैक्स टाइप में होता है, स्टोव्स, केक्स एंड टमाटोज एट्सेट्रा, एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकमिंग
बिकम एक्साइटिंग, कि अब सारी चीज़ें यहाँ रखी है ना पैकिंग के लिए, अब इंटरेस्टिंग माहौल बनने वाला है. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. दे स्टार्टेड देयर पैकिंग विद ब्रेकिंग अ कप. उन्होंने जब अपनी पैकिंग शुरू की, सब शुरू में ही एक कप को तोड़ दिया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. They did that just to show you what they could do and to get you interested. वो तुम्हें ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर वो कितना इंटरेस्टिंग माहौल एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले हैं. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम. अब जो हैरिस है उसने स्ट्रॉबेरी जैम को टॉप ऑफ द टमाटो के टॉप में रख दिया एंड स्क्वैश्ड द टमाटो एंड देन हैड टू पिक आउट द टमाटो विद अ टी स्पून. और उसको किससे उठा रहा है फिर? टी स्पून से. ये तो हैरिस के द्वारा किया गया कारनामा है. आफ्टर दैट इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड द ट्रोड ऑन मतलब स्टैप्ड ऑन, उसके ऊपर पैर रख दिया. किसके ऊपर? बटर के ऊपर. एंड आई डिडंट से एनीथिंग. जो नरेटर है ये सारी चीज़ें देख रहा है बट वो कुछ कह नहीं रहा. वो कहाँ बैठा है? टेबल की एज पर, और वॉच्ड ऑल द थिंग्स. दे आर क्रिएटिंग मैस while packing the hampers. That's all for today, students. Now you have to read the chapter while listening the video. Thank you so much, students.